یا اللہ قرضداروں کو قرض سے نجات دلا، یا اللہ ہر مسلمان کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور عطا فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے ہم بے بس ہیں اور محتاج بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ وقت ہمیں دکھایا ہے لیکن دوسروں کو نہ دکھانا۔ یا اللہ جو ہماری آپا جی ہیں جنہوں نے ہماری اتنی زیادہ امداد کی ہے، یا اللہ ان کے بھائی کا آپریٹ ہے، ان کا مسئلہ چل رہا ہے، یا اللہ ان کا خیریت سے آپریٹ ہو جائے، یا اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں پہلے جب ابو زندہ تھے تو خوشی خوشی زندگی چل رہی تھی، خوشحال تھے، کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی دن آئے گا تو ابو چلے جائیں گے چھوڑ کے، بس پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گریٹ جی تو پھر وہ شاپ لگا دی جائے، امی بھی ساتھ میں ہوں گی، ہم بھی ساتھ میں ہوں گے، اس طریقے سے ہمارا سرکٹ چل جائے گا۔ اچھا گھر پہ یہاں پہ اگر شاپ لگ جائے چلے گی یہاں پہ والے آئیں گے؟ جی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا اس بچی کا بتانا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں گھر میں ایک چھوٹی سی شاپ دکان لگا کے دی جائے، ٹکی ٹافی ہو گئی، یہ بلاغ العلا بکمالہ بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج الحمدللہ میں موجود ہوں اپنی اس بیوہ ماں جی کے پاس اور اپنی ان یتیم بہنوں کے پاس۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا چھوٹا چھوٹا بیٹا یہ ہے، ان کے جو ہسبینڈ تھے ماں جی کے تقریباً 5 سال سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب ان کے پاس جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان بیٹیاں ہیں، 6 ان کی بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا جو بڑا ہے وہ تقریباً ہے 10-11 سال کا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، چھوٹا یہ آپ کے سامنے ہے جو ابھی بچہ ہے۔ تو اس ماں جی کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، باقی ان کی زبانیں انہی سے لیں گے۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہوئے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک۔ اچھا ماں جی آپ یہ بتائیں آپ کے ہسبینڈ کو کتنا عرصہ ہوا یہاں؟ 5 سال ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب یہ بچیاں ماشاءاللہ جوان ہیں، تو یہ کس طرح گزارا ہو رہا ہے؟ آپ کے روزی کا وسائل یہ کیسے بچوں کا آپ پیٹ پا رہے ہیں؟ کہ کہاں سپورٹ ہوتا ہے؟ گھر میں کام کرتے ہیں، وہاں سے کتنا ملتا ہے آپ کو؟ بس 1000 یا 500 1500 مہینے کا؟ اچھا مہینے کا 1000-1500 تک ملتا ہے، مطلب دہاڑی کا 100 روپیہ آپ کو دیتے ہیں، کبھی 50 روپیہ۔ اگر 50 روپیہ دیں تو 1500 روپیہ مہینے کا بنے گا، ایسے ہے؟ تو کوئی اور وسائل نہیں ہے، کوئی کمانے والا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے؟ اچھا تو یہ بچے پال رہے ہیں آپ کے؟ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا کتنا عرصہ ہوا آپ کے ابو کو فوت ہوئے؟ ابو کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ 5 سال ہو چکے ہیں۔ اب کیسے نظام ہو رہا ہے؟ کس طرح یہ گزارا کر رہے بس ہیں؟ ہم یہ دوسروں کے گھروں پہ جا کے کام کرتے ہیں، اچھا بس گزارا ہو جاتا ہے، ایک دن میں 50 روپے دیتے ہیں، اچھا تو ایک ماہ میں 1500 کبھی 1000 دے دیتے ہیں، بس اسی طریقے سے گزارا چل رہا ہے، اللہ کا شکر پھر بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک جس حال میں ہے ماشاءاللہ اس بچے کا بتانا ہے، جس حالات میں ہے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس ٹائم آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اچھا بیٹا یہ سلائی مشین دینے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی خوشی ہوگی، بس چلا لیں گے، سیکھ لیں گے امی سے جی تو ہو جائے گا،
तो पड़ोसी वगैरह भी आएंगे जी जी तो सिलाई वगैरह ले लेंगे, चलो कुछ ना कुछ आ तो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। हम उन सब का शुक्र अदा करते हैं जिनने हमारी इमदाद की। जी 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 अल्लाह ताला उनकी दिली ख्वाहिश पूरी करे और मजीद तरक्कियां दे, आमीन। उनकी जो भी परेशानी तकलीफ है दूर करे। आमीन आमीन। हमारी माँ जी हैं, आप आपा जान भी बोल सकते हैं। जी हमारे बड़े आपा हैं जो समंदर पार हैं, उनके भाई का ऑपरेशन है किडनी का। जी आपने स्पेशली उनके लिए दुआ करनी है। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, उनके ऑपरेशन को अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। तो अच्छा बेटा, आपको कुछ खुशी हुई? जी खुशी है बस, और जिंदगी गुजारने का कुछ सहारा मिल गया है, जी जी जीने की उम्मीद लग रही है। हम चलिए, सबका अच्छा जी शुक्रिया अदा करते हैं जी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे जो आमीन। बीमार है। आमीन जी और तो कामयाबी के साथ उसका ऑपरेट भी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। हमेशा दुआ करनी है। जी हम भी दूसरों के घर में जाके काम करती हैं, जी जी हमें अच्छा तो नहीं लगता लेकिन फिर भी क्या करें, वो हमारे पेट पालने की खातिर बाहर जाती है काम करने। पहले जब अब्बू जिंदा थे तो खुशी खुशी जिंदगी चल रही थी, खुशहाल थे, ओहो कभी ये सोचा नहीं था कि ये भी दिन आएगा ओहो तो अब्बू चले जाएंगे छोड़ के। बस फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जी क्योंकि हम बेबस हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। ओहो तो बस इसलिए अम्मी को देखते हैं काम करते हुए, दुख भी होता है क्योंकि उसके सामने रो भी तो नहीं सकते, तो चुप चुप कर भी रोते हैं। अगर उनके सामने रोएंगे तो वो मजीद परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस फिर बेटा अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आमीन। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये आर्ज़ी दुनिया है, हमने भी चला जाना है, इस दुनिया से सभी ने जाना है। जी तो बस कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है, जिस तरह जिसका टाइम आ रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बच्ची के अल्फाज ने जो ना मुझे खामोश कर दिया। कहती हैं रो भी नहीं सकते अम्मी के सामने। पहले जब हमारे अबू जिंदा थे, हमारा घराना खुशहाल था, खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी। वाले साहब के जाने के बाद कुछ नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ क्या हुआ। अम्मी अब दूसरों के घरों में काम करती हैं, पहले खुशहाल घर में बैठते थे, अपने घर पे बैठ के जो ना कहीं बाहर नहीं जाते थे। वो वाले साहब इनके कमा के आते थे। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक उनको भी और तमाम मुसलमान को जो इस दुनिया से चले गए हैं जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और ख़ासकर हम दुआ करेंगे अपने भाई के लिए, आपा जान के जो भाई हैं जिनका किडनी का ऑपरेशन है, अल्लाह पाक उनके ऑपरेट को कामयाब फरमाए, उनको किडनी जो मिल का इशू चल रहा है वो भी मिल जाए। तो इन बच्चों की, इन यतीम बच्चों की, इन बेवा माँ की जो है ना दुआ इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगी। दिल से ये दुआ दे रहे हैं बच्चियों। अच्छा, आपको उम्मीद थी आपको ये सामान आज मिल जाएगा? मिल जाएंगे? नहीं मालूम था, बस वही अल्लाह ताला है, कहीं ना कहीं से वसीला अल्लाह बना पाक के देता ऊपर है। भरोसा है, जी अल्लाह ताला जी। पे पूरा यकीन है। यकीन है। जी तो अल्लाह पाक कहीं से रास्ता खोल देते हैं। जी देने वाली ज़ात वही है, उसी से मांगना चाहिए। तो इंशाअल्लाह। अच्छा, आपकी क्या अपील है, क्या रिक्वेस्ट है, आगे हम आपके साथ क्या हेल्प कर सकते हैं जिससे जो है ना आपके घर का सर्कल चलता रहे, आपकी माँ को बाहर न जाना पड़े, घर बैठ के ये छोटे बच्चों की रखवाली भी कर सकें? जी क्या चाहते हैं, ऐसा क्या हो? ये तो सिलाई मशीन तो मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे 200 400 ये 500 तक कमा लेंगी सिलाई, कपड़े सिलाई करके। तो आगे क्या चाहते हैं आप? बस मैं तो पढ़ाई नहीं की जी जी लेकिन शौक था, अबू को भी था, जी। लेकिन नहीं पढ़ सकते, ये तो सारी जिंदगी का अफसोस ही रहेगा। ओहो। लेकिन छोटे बहन भाई हैं, नजदीक स्कूल है, वहाँ पे फीस नहीं होती, वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, लेकिन इशू फिर भी होता है जी, कि जी। काफी इनकी कहाँ से लाएं। तो बस हम चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे अपने पाँव पे खड़े रहें, जिस तरीके से मैं बेबस बैठी हूँ ओहो। ये ना बैठी हूँ। ओहो। और मैं चाहती हूँ आपा जी हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनके भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे, ऑपरेट इसका कामयाबी के साथ हो। आमीन। तो हम कहते हैं कि अगर घर में कोई शॉप वगैरह लगा दी जाए, जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी हमारे पास रहें। जब वो बाहर जाती हैं तो हर वक्त परेशानी ही रहती है,
सारा दिन परेशानी में दिन गुजर जाता है। ओह, तो बस हम यही चाहते हैं कि अबू तो दूर चले गए हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारी अम्मी हमारे आंखों के सामने ही बैठी रहे। ग्रेट। जी, तो फिर वो शॉप लगा दी जाए, जी जी। अम्मी भी साथ में होंगी, हम भी साथ में होंगे, इस तरीके से हमारा सर्कट चल जाएगा। अच्छा, घर पे यहाँ पे अगर शॉप लग जाए चलेगी? यहाँ पे वाले आएंगे? जी हैं, इंशाल्लाह। अच्छा, इस बच्ची का बताना है कि हम चाहते हैं हमें घर में एक छोटी सी शॉप दुकान लगा के दी जाए, टिकी टाफी हो गई, ये घरेलू सामान हो गए, राशन वगैरह का, इस तरह का अगर लगा के दिया जाए तो हमारी अम्मी घर बैठ के मेरे छोटे बहन भाइयों का पेट पाल सकती है और इनको पढ़ा भी सकती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस बेबस मजबूर फैमिली को जिस तरह आज एक छोटा सा कारोबार दे के जा रहे हैं, इसके साथ एक और कारोबार मिल जाए। बच्ची ने ख्वाहिश कर दी है कि घर पे जो है ना अगर दुकान लगा के दी जाए तो उससे हमारे अम्मी घर बैठ के रोजी रोटी बनाती रहेगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ताकि इस फैमिली को एक घर पे दुकान बना के दी जाए, जिससे इन छोटे यतीम बच्चों का, इन छोटी यतीम मेरी बहनों का पेट आसानी से पलता रहे, कम से कम ये पेट भर के खाना खा के जो है ना सो सके। तो इंशाल्लाह इन लोगों की और हम सब की दुआएं आपके साथ रहेंगी, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस टाइम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, बाकी इसका रिवार्ड अल्लाह पाक इंशाल्लाह दोनों जहान में आपको अता फरमाएंगे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इसे अपने बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर अता फरमा। मेरे परवरदिगार, जो बीमार है उनको शिफा दे और जो कमजोर है उन्हें कुव्वत दे। या अल्लाह, कर्जदारों को कर्ज से निजात दिला। या अल्लाह, हर मुसलमान की परेशानी और तकलीफें दूर अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से हम बेबस हैं और मोहताज बैठे हैं, या अल्लाह ये वक्त हमें दिखाया है लेकिन दूसरों को ना दिखाना। या अल्लाह, जो हमारी आपा जी हैं जिन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा इमदाद की है, या अल्लाह उनके भाई का ऑपरेट है, उनका मसला चल रहा है, या अल्लाह उनका खैरियत से ऑपरेट हो जाए। या अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह उनकी जो भी बीमारी, जो भी परेशानी तकलीफ है दूर कर दे। या अल्लाह, हर मुसलमान की परेशानी और तकलीफें दूर अता फरमा। कई साल से ये यकीन है, कई रोज से ये गुमान था, कई साल से ये यकीन है, कई रोज से मेरे दिल से गुंबद सब्ज़ का ये मामला कोई और है, मेरे दिल से गुंबद सब्ज़ का ये मामला